Be seated in your comfortable position. Keep your spine straight. Head and neck straight. Observe your posture. Mentally. And start relaxing the body, feet upwards. Consciously do it, even if you feel it is relaxed. Step by step, part by part, keep shifting the attention. This attention is a very important tool. So as we take the discipline of shifting our attention, toe upwards, we are deliberating relaxation of each part, which involuntarily may be held tight or in a spasm due to our mind and its thought activities. When you reach your shoulders, invoke your Ishta Devata, your own Aradhya. While we have freedom to worship as many gods as we want, for these sessions we choose only one. हमारा संबंध इसी आराध्य से हम दृढ़ करेंगे। इसी आराध्य में सब देवी देवता उपस्थित हैं। यही इष्ट देवता हमारा ब्रह्मन है। Initially, we may have a very thin thought flow towards it because we've never paid attention. But with practice, and as Shastra has told us, as I just repeated, it gets stronger. वृत्ति ही जगत बनती है। अगर ईश्वर वृत्ति है और दृढ़ है तो दर्शन भी पॉसिबल है। ये तो सृष्टि के नियम में है। In Vedantic darshan, we are careful to choose our Ishtam according to Vedic parampara.
Many acharyas and gurus have attained siddhis and are available for worship. But in Vedanta, we accept completely. What Vyasacharya has described in the Puranas. There are many forms available, many names with many vibhutis specializing them. सो ध्यान के समय एक ही इष्ट देवता इष्ट है, मगर वो हमारा इष्ट देवता, हमारा आराध्य, उसी में हम सब देवताओं को सम्मिलित रखते हैं। इनसे भिन्न कुछ नहीं, इनसे भिन्न कोई नहीं, इन्हीं में सब सम्मिलित है। And we don't stop there. We have to add. As Shankaracharya keeps saying it in Bhashyams, यही वो ब्रह्मन है। And when this vritti gets strong, Shankaracharya adds, this upasana is incomplete if you do not add further, यही ब्रह्मन इस शरीर में स्थित है, ये ईश्वर इस शरीर में स्थित होके संचलन कर रहा है। But these are steps. We cannot reach the topmost without anchoring in the initial ones. पहले तो हम इष्ट देव से अपना थॉट वृत्ति को स्ट्रॉन्ग करेंगे। अगर आपके कोई नहीं है तो आचार्यों ने कहा है, like Swami Dayanand Saraswati, that you can bring up any. और हम तो इतनी लिबरलिटी दिखाते हैं कि अगर फिर भी कोई निश्चय ना हो, I would say make purchase, pick up one. वही आपका इष्ट देव है। It doesn't matter. हम तो उसमें सबको देखने वाले हैं। ये तो भगवान है। Why did we bring up Bhishwara when we came to our shoulders? Because while living a day, we are kartas. और वो जो एक भार एहसास होता है, इस ध्यान के काल हम उसे कुछ क्षण ईश्वर को समर्पित करते हैं। फैक्ट है, वही इस शरीर में रह के सब चला रहा है, वही करता है, उसी की प्रेरणा से सब होता है। फैक्ट है कि
शरीर को ऊर्जा और शक्ति इन्हीं से मिलती है। मेरी इच्छाएं मुझे कुछ भी कह दे, मुझे करना है, मगर क्रिया शक्ति के बिना कुछ नहीं कर सकते। ये क्रिया शक्ति इन्हीं ईश्वर से आती है, और ये ईश्वर इस शरीर में ही रोम रोम में बस के इन द हृदय ग्रंथि, as the Kathopanishad said to us, in this deep cave of our own heart, which our acharyas have explained as the mind, Antakaran. इसी में से वो अपनी ऊर्जा फैलाता है, व्याप्त करता है, और इस शरीर को संचलन की, मेरी इच्छा की प्राप्ति करने के लिए शक्ति मिलती है। What I want to do and not want to do, what I like to do and what I not like to do, to fructify all that. Anyway, it is this Ishvara who gives me the strength and the Shakti. तो मेरा कर्तृत्व भाव जो मेरे कंधों पे रहता है, विद्या से तो हम इसे आत्मविद्या में डिसॉल्व करते हैं, मगर अगर मैंने अपना कल देखा था तो ये विद्या अभी तक मेरे व्यवहार में आई नहीं है। मैं करता हूं, ऐसा मानती हूं। तो ये कंधों पे जो हमें लगता है हमारे कंधों पे हमारे कर्तव्यों का भार है, कुछ क्षण हम इसे इस ईश्वर को अर्पित करते हैं, क्योंकि हमारा जो सूर्य उदय का अनुभव हुआ है आज, इस सूर्योदय में एक बहुत अमूल्य पुरुषार्थ का अवसर मिला, जो सिर्फ मनुष्य जीव को मिलता है, सिर्फ मनुष्य उपाधि में जीव को मिलता है। And that extraordinary opportunity is आत्मा विचार। आत्मा विचार मतलब आत्मा अनात्मा विवेक। तो अगर मेरा मन अपने दिन के कार्यों में व्यस्त रहेगा, ब्रह्मणि कोपी न सकता, कब अवसर लेंगे हम कि ब्रह्मन से जुड़ने का प्रयास करें, उसे जानने का प्रयास करें। बुद्धि का विषय तो है नहीं, तो पढ़ के तो नहीं आएगा। ये विवेक है। दुनिया में किसी भी काल में कोई किताब हमको ये विवेक नहीं दिखा सकता। विवेक क्या है? ये तो खुद की शक्ति है। इसे तो हमें खुद ही उत्पन्न करनी पड़ती है। जैसे क्रिया की शक्ति हम नहीं लाते, विवेक की शक्ति ईश्वर ने दी तो है, मगर उसे इन्वोक करना वो हम पे छोड़ा है, हमारा पुरुषार्थ। सब अध्ययन जरूरी होता है इस समझ को लाने के लिए, मगर समझ से
विवेक की शक्ति को उत्पन्न करना, कि मैं विवेक शक्ति से जुड़ूं, जो भी मेरे पास आज उपलब्ध है, जितनी भी है, बहुत है। For every jiva, Bhagwan has given them all the equipments that is necessary for them for fulfilling all four purusharths. तो ये विवेक शक्ति अभ्यास से ही उत्पन्न होती है। More I identify with it, more I am able to use it, discern with it. And the same Vivek Shakti then navigates my life as well, based on what is permanent and impermanent, what is Nitya and Anitya, what is Satya and Mithya. जीवन में भी वो समझ साफ हो जाती है, and my choices become clear. ये पुरुषार्थ ज्ञान योग है। ईश्वर ऑलरेडी हमारे शरीर को संचलित रख रहा है। हमने ईश्वर पे अपने कर्तव्य भाव को थोड़ी देर के लिए सौंप दिया, अर्पण कर दिया, so that my mind becomes free to start the investigation, to start exploration, to start viveka, to initiate it. From any of my experiences, I try to understand, appreciate, see the truth of that. We have taken, since last few sessions, one statement. I observe myself breathing. Today we also understand, ये तो ईश्वर के नियम में, उसने सृष्टि में ये पूरा व्यवस्था दिया है। The inlet chamber from nose to lungs, the purifying chamber, the alveoli in the lungs, the exhalation process, connecting it to the macrocosm, Vayu. Because it goes in, the diaphragm goes down. When the air goes up, diaphragm has to come up for the lungs to squeeze, for the air to go out. With it, the carbon dioxide goes out. Bhagwan creates plants, trees, that this carbon dioxide is get purified in the environment. They take in the carbon dioxide and release the oxygen. That oxygen comes back to my, along with the carbon dioxide. ये साइकिल तो ईश्वर ने गिफ्ट में दे। So I see myself breathing. The question or the statement I have asked is to myself, मुझे अनुभव में हो रहा है कि मैं सांस ले रही हूं। I can't deny this. क्योंकि ये मेरा अनुभव आपके ज्ञान से निर्भर नहीं है। आपको दिखे कि मैं सांस ले रही हूं, उससे कोई मेरी सांस चलनी नहीं शुरू हो जाती या रुकती नहीं है। तो ये तो निश्चय पूरा है कि आप दुनिया में किसी के भी
निर्धारित, dependent on them is not the movement of my breath. तो मेरा अनुभव कह रहा है कि मैं सांस ले रही हूं। हम इस पे आत्मा अनात्मा विचार कर रहे हैं। हमें सांस दिख रही है, चल रही है। जब लगे कि शैलो हो गई है क्योंकि मेरा मन टाइट है, स्ट्रेस्ड है, प्रीऑक्यूपाइड है, एंग्शियस है, इन्वॉल्व्ड है, तो मैं थोड़ी गहरी सांस ले सकती हूँ। I fill my lungs and I let it release out. मगर कर तो मैं ही रही हूँ, ऐसा लगता है। We are examining this statement, this अनुभव। क्या मैं कर रही हूँ? क्या मैं सांस ले रही हूँ? This is a question that is to be explored. हमारे उपनिषद ऐसे ही प्रश्नों से बने हैं। किसी जागृत वैरागी मुमुक्षु जीव को इस प्रश्न में एक अलाइवनेस दिखी। उसके चैतन्य में ये स्टेटमेंट आ गया, अरे मुझे लगता है कि मैं सांस ले रही हूं, मगर मैं तो बस गहरी या ना गहरी कर सकती हूँ, इसके बियॉन्ड तो मैं कुछ भी नहीं करती। तो ये पूरा साइकिल, ब्रीदिंग प्रोसेस, पेड़ उस कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, उनको सनलाइट मिलती है, उनका क्लोरोफिल एक्टिवेट होता है, वो प्योरिफिकेशन प्रोसेस से वो अशुद्ध हवा को शुद्ध करते हैं, मैं अशुद्धि बाहर निकालती हूँ। ट्रीज उस शुद्धि को अशुद्धि को लेके शुद्ध करके फिर मुझे वापस शुद्ध हवा, जिसमें फिर भी अशुद्धि है, फिर मेरे लंग्स उसको शुद्ध करते हैं। अरे ये मेरे अनुभव में कहाँ है कि ये सब मैं कर रही हूँ? ना सन मैं बना रही हूँ, ना पेड़ मैं बना रही हूँ, ना पत्ते मैंने बनाए, ना उनको रंग मैंने दिया, ना ये प्रोसेस मैंने किया। मैं तो भोगी बन गई, ऋणी बन गई इस पेड़ की, जिस पेड़ ने ये सफाई की कि मेरे लंग्स में टू सम एक्सटेंट भार कम पड़े शुद्धि का। ये तो सब मेरे अनुभव में है ही नहीं कि मैंने किया। ऐसा विचार ही निधिध्यासन कहलाता है। हमें वेदांत वाक्यों को गहराई से देखना है, समझना है, उनके सत्य को देखना है। द डीपर कॉन्टम्पलेशन, clearer contemplation is possible because we remove our mind from all other activities and we keep our body still so that we can focus on what is the truth. ऐसा प्रश्न, ऐसा स्टेटमेंट को एग्जामिन करने के लिए जब जीव
आपका मन विचलित होता है, अपने राग द्वेष से नहीं विचलित होता, अपने अहंकार से विचलित नहीं होता, अपनी पूर्णता ढूंढने से विचलित नहीं होता, जगत तो उसे तंग करता ही नहीं। Such a person has already mastered the technique of living. उसको तो जगत में जीना आता है, सबके साथ, हर गुण के साथ। उसे जगत तंग नहीं करता, वो जगत को तंग नहीं करता। मगर वो खुद का सत्य नहीं समझता। वो देखता है कि मैं सांस तो ले रहा हूं, ले रही हूं, लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर रही। इस सांस को अगर मुझे हर बार गहराई करनी पड़े तो भी मैं थक जाऊं। How often can I deep breathe? Few times. And then I let it go. वो फिर अपने आप चलती है। तो ये जो मेरा अनुभव है कि मैं सांस ले रही हूं, आई कांट डिनाई दिस स्टेटमेंट। मगर जब मैं एक्सप्लोर करूं इस स्टेटमेंट को, तो मुझे कहीं दिख ही नहीं रहा कि मैं क्या कर रही हूँ। थोड़ी देर गहराई ले सकती हूँ, उसके बियॉन्ड नहीं कर सकती। लाइफ, when I started with my first cry till the last transaction of this pran, how much control did I really have? मैंने कितना किया इस ब्रेथ को इन एंड आउट। अगर हमारा श्रवण होता है श्रद्धा से, परंपरा से, तो बहुत गुत्थियां खुलती हैं। मगर हमें शास्त्र का विद्यार्थी बनना पड़ता है पहले। बहुत कम लोग होते हैं जो विद्यार्थी बनते हैं। मगर बन जाते हैं शायद कभी ना कभी। बनना पड़ता है सबको, क्योंकि कल्याण हमारा सिर्फ आत्म विचार में है। तो ये प्रश्न जिसके भी मन में आया था, ऐसे प्रश्न ही उपनिषदों को, दैट कॉन्वर्सेशन स्टार्टेड विद एन आचार्य जो खुद अपने आत्म विचार में लीन थे, साधना करते थे, मगर कुछ हद तक उन्हें समझ में आया क्योंकि उनको उनके आचार्यों ने समझाया। ऐसे परंपरा चल के अगर किसी ने पूछा, जैसे नचिकेतस ने पूछ लिया कि मृत्यु के बाद इस जीव को क्या होता है, कहाँ जाता है, ये प्रश्न हमारे बुद्धि में तो उदय नहीं होते। हमें क्या फर्क पड़ता है, हमें तो जीवन से मतलब है। मेरा जीवन थोड़ा सुखदाई हो जाए, मेरे जीवन में मुझे कुछ मिल जाए, मेरा जीवन, मेरी खुशी। नचिकेतस के मन में उदय हुआ, जन्म हुआ है तो वियोग होगा।
तो यहाँ दुनिया में तो बहुत ओपिनियंस हैं। सब अपने आप को ज्ञानी कहते हैं। कोई ये कहता है, कोई वो कहता है कि मरने के बाद आत्मा का ये होता है। आज मेरा प्राण चल रहा है इस धरती पर, पृथ्वी पर। मुझे अनुभव हो रहा है जीवन का। मगर नचिकेतस को पता है कि ये निश्चित काल है, अनिश्चित नहीं। निश्चित है कि एक दिन इसका अंत है। तो फिर मेरा क्या होता है जब ये प्राण यहाँ रुकता है? तो मैं जो सांस ले रहा हूं, ये मैं का क्या होता है? सांस तो रुक गई, मैं का क्या होगा? And this is how the study of the Upanishads helps us to grow our own selves. जो विचार हमारे मन में कभी उदय ही ना होते, क्योंकि हम तो मैं और मेरे में व्यस्त हैं। इन शास्त्र अध्ययन से हमें एक अवसर मिल जाता है कि ये जो हमारे आगे अपनी गति कर चुके हैं, हम उनके पीछे उसी मार्ग पे चल के अपना भी कल्याण करें। इस प्रश्न को हम अपना प्रश्न बना लें। इस वाक्य को हम भी देखें जरा, क्योंकि अनुभव तो है हमारा। मैं सांस ले रही हूं, इसके बियॉन्ड तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। एंड दिस इज यूनिवर्सल, क्योंकि ये अविद्या का बीज है। अविद्या से ये कंक्लूजन हुआ है कि मैं सांस ले रही हूं। ये तो प्रमाण बन गया कि मैं जानती ही नहीं। उसी को अविद्या कहते हैं। Whenever time allows us, we explore this statement. इसके जवाब में हमें कोई जल्दी नहीं है। We have to keep thinking. वो उस वक्त सही लग सकता है, और सोचेंगे तो और थोड़ा स्पष्ट होगा। Focus on your body, the way it is seated. Observe your breath in and out. बस बीच में कभी मन में चलने दो, मैं सांस ले रही हूं। If any thoughts come in between, they are bound to come. कोई बात नहीं।
ये कोई एक दिन में होने की चीज नहीं है, मगर एक दिन हो जाएगी। ये तो सर्टन है। उम्मीद नहीं। Remember your purpose for joining the session. To your Aradhya, to your Ishta Devata, offer pranam. सूर्योदय के साथ हमें जीने का एक अवसर मिला है। इसके लिए इस व्यवस्था को, जो शायद हमारी बुद्धि पूरा अप्रिशिएट भी ना कर पाए, हम श्रद्धा से नमन करते हैं और अपने ही इस पर्पस और मोटिवेशन से, संकल्प से जुड़ते हैं कि हमारा ध्यान अपने अध्ययन पे रहे। I will chant Om once to conclude. Om.
Open your eyes when you want to. Hari Om. शुभ दिन।